Okay, so the next topic that we have from reproductive pathology chapter, it is endometriosis. Again, a very important topic. So, what is endometriosis? It is defined as the presence of endometrial glands and stroma in a location outside the uterus. कि endometrial tissue है, but at a site other than the uterus. और ये कहाँ पाया जा सकता है? It can be found in the ovaries, most commonly ovaries में ही होता है, and in the pouch of Douglas and in uterine ligaments, fallopian tubes and rectovaginal septum. इसके अलावा कुछ डिस्टेंट साइड्स पे भी हो सकता है, लिम्फ नोड्स में, लंग्स में, इवन हार्ट में, स्केलेटल मसल्स में, बोन्स में, इवन नोज में, कहीं भी एक एबनॉर्मल प्रेजेंस है एंडोमेट्रियल स्टोमा की, एंडोमेट्रियल टिश्यू की, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स की, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस. ठीक है. और अगर यही एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जो एंडोमेट्रियम है वहाँ से इन्वेड करके मायोमेट्रियम तक चला जाए इनटू ऑफ द यूट्रस, दैट विल बी कॉल्ड एज एडिनोमायोसिस. ठीक है, ये बात पता चल गई. सेकंड हम ये देखते हैं, इट इज़ वेरी कॉमन अमंग विमेन. ऑलमोस्ट 10% of women in the reproductive years can have endometriosis, and about half of the women with infertility, they also have endometriosis. So it is a very common cause of infertility or subfertility in women as well. अच्छा, इसके अलावा ये पेरिटोनियल कैविटी में पाया जाता है, पेरी अम्बिलिकल टिश्यूज में पाया जाता है. और 4 हाइपोथेसिस हैं कि ये एंडोमेट्रियोसिस होता क्यों है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस. तो एक तो थ्योरी ये कहती है दैट इट इज़ अ रिगर्जिटेशन थ्योरी विच इज़ करंटली फेवर्ड एज वेल. कि हुआ ये कि मेंस्ट्रुअल बैकफ्लो हुआ फ्रॉम द यूट्रस इनटू द फैलोपियन ट्यूब्स, जिसने इम्प्लांटेशन कर दी यूट्राइन टिश्यू की या यूट्राइन एंडोमेट्रियम की विद इन द फैलोपियन ट्यूब्स या विद इन द जो उसके रेट्रोग्रेड टिश्यूज़ पड़े थे वहाँ पर. ठीक है. तो एक तो इसको हम रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुअल फ्लो भी कहते हैं या रिगर्जिटेशन थ्योरी कहते हैं, which resulted in the implantation of endometrial tissue in the fallopian tubes. The next theory is the benign metastasis theory, which says that endometrial tissue from the uterus can spread or metastasize to the distant sites via the blood vessels and the lymphatics. So that is the benign metastasis theory. Third is the metaplastic theory, which says that endometrial differentiation हो जाती है of the coelomic epithelium as a source. So we know कि coelomic epithelium present है in which is actually a mesothelium of the pelvis and the abdomen. अगर ये endometrial differentiation कर जाए in the pelvis or in the abdominal region, so that can also form the endometrium, right? The next is the extrauterine stem cell or the extrauterine progenitor cell theory. We know that many stem cells from the bone marrow are circulating in the blood, and if they differentiate into endometrial tissue, that can also result in the formation of endometriosis. So we have a regurgitation theory or a retrograde menstrual flow theory, and then we have the benign metastasis theory, we have metaplastic theory, and we have the extrauterine progenitor या stem cell theory. ये 4 theories हैं of the occurrence of endometriosis. Then the studies suggest that endometriotic tissue ना सिर्फ ये abnormal sites पर present होता है, बल्कि ये abnormal भी होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा inflammatory cytokines and inflammatory mediators produce कर रहा होता है, like prostaglandin E2. और ये इतने inflammatory mediators क्यों produce करता है? क्योंकि जो स्ट्रोमा है, जो endometrial abnormal स्ट्रोमा है, वो रिक्रूटमेंट कर रहा है और एक्टिवेशन कर रहा है मैक्रोफेजेस की, और यही फिर मैक्रोफेजेस क्रिएट करते हैं इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स. अच्छा, इसके अलावा जो स्टोमल सेल्स हैं ना सिर्फ वो मैक्रोफेजेस को रिक्रूट कर रहे हैं, साथ ही साथ वो एरोमेटेज एंजाइम भी प्रोड्यूस कर रहे हैं विच इज़ नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन. इसलिए जो एबनॉर्मल एंडोमेट्रियल टिश्यू है, ये एस्ट्रोजन का भी रिच सोर्स होता है. सो दीज फैक्टर्स इनहांस द सर्वाइवल एंड परसिस्टेंस ऑफ द एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू. एक तो एरोमेटेज एंजाइम है, दूसरा एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस एंड द प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस एट अ फॉरेन लोकेशन. ठीक है. और इसलिए जब हम कॉक्स 2 इनहिबिटर्स देते हैं या एरोमेटेज इनहिबिटर्स देते हैं तो हम देखते हैं कि रिग्रेशन होती है एंडोमेट्रियोसिस की. ये बात होगी. अच्छा, और इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट बात है वो भी देख लेते हैं. इसकी मॉर्फोलॉजी कैसे हमें नजर आती है. सो जो एंडोमेट्रियोसिस है टिपिकली कंसिस्ट ऑफ फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम विच अंडरगो साइक्लिक ब्लीडिंग जस्ट लाइक द नॉर्मल एंडोमेट्रियम. सो बिकॉज ऑफ दैट ब्लीडिंग द ब्लड collects itself in the aberrant foci या abnormal locations and appear as a grossly red brown nodule, जिसको गन पाउडर नोड्यूल्स भी कहते हैं या रेड ब्राउन नोड्यूल्स और implants. They range in size from microscopic to 1 to 2 centimeter in diameter and lie on or just under the affected serosa surface. Often individual lesions coalesce to form larger masses, and when ovaries are involved, the lesions may form large blood-filled cysts that turn brown. Definitely blood बाद में brown हो जाता है, जिसको हम कहते हैं chocolate cyst as the blood ages. With seepage and organization of the blood, widespread fibrosis occurs, leading to adhesions among pelvic structures, sealing of the tubal fimbriated ends, and distortion of the fallopian tubes and ovaries. Definitely हम structures बनेंगे, adhesions बनेंगी, fibrosis होगा तो उसके नतीजे में क्या होगा? डिस्ट्रोशन हो जाएगी फ्लोपियन ट्यूब्स और ओवरीज की, और ट्यूबल फिब्रेटेड एंड्स बंद हो जाएंगे. तभी एंडोमेट्रियोसिस इज एसोसिएटेड विद इनफर्टिलिटी.
तो जो डायग्नोसिस एंडोमेट्रियोसिस को डिपेंड करेगा अपॉन फाइंडिंग द एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा एट साइट्स एक्सटर्नल टू द एंडोमेट्रियम। क्लिनिकल फीचर्स कैसे हमें मिलते हैं? तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंडोमेट्रियोसिस डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लीजन, जहाँ पर प्रेजेंट होगी, जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही होगी वैसे ही सिम्टम्स आएंगे। एक्सटेंसिव स्कारिंग जो होती है फ्लोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज की ऑफन प्रोड्यूसेस डिस्कम्फर्ट इन द लोअर एब्डोमेन एंड इवेंचुअल स्टेरिलिटी। ठीक है, जो स्कारिंग अगर होगी फ्लोपियन ट्यूब्स की ओवरीज, उसके नतीजे में लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, स्टेरिलिटी होगी। अगर रेक्टल वॉल की इन्वॉल्वमेंट है दैट कैन प्रोड्यूस पेन ऑन डिफिकेशन। अगर यूट्राइन या ब्लेडर की इन्वॉल्वमेंट, उस नतीजे में यूट्राइन का इन्वॉल्वमेंट है तो डिस्पेरोनोआ या पेन ऑन इंटरकोर्स होगा, और ब्लेडर का इन्वॉल्वमेंट है तो पेन ऑन यूरिनेशन होगा या डिसयूरिया। ऑलमोस्ट ऑल केसेस प्रेजेंट एज डिस्मेनोरिया और पेन ऑन मेंस्ट्रुएशन एंड पेल्विक पेन, ये दोनों फीचर्स कांस्टेंट रहेंगे, पेल्विक पेन एंड पेन ऑन मेंस्ट्रुएशन रिजल्टिंग फ्रॉम इंट्रा पेल्विक ब्लीडिंग एंड इंट्रा एब्डोमिनल एडेशंस। ठीक है, ये बात पता चल कि इसको थोड़ा सा हम पैथोमा से रिवाइज भी कर लेते हैं इस टॉपिक को। So endometrial glands and stroma outside of the normal endometrial lining is called endometriosis. Most likely it is due to retrograde menstruation with implantation at an ectopic site like fallopian tubes. Presents as dysmenorrhea, pain on during menstruation, and pelvic pain may cause infertility as well. Very important cause of infertility it is. Endometriosis cycle just like normal endometrium. Most common sites of involvement are the ovary, which classically results in the formation of chocolate cysts, जो हम पढ़ के भी आए हैं और ये हम बनी भी हुई है. This is a disorganized or degenerated chocolate cyst in the ovary. Anyway, अदर साइट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट कैन बी यूट्राइन लिगामेंट्स, जिसकी वजह से पेल्विक पेन होता है, पाउच ऑफ डगलस जिसकी वजह से पेन विद डेफिकेशन होता है, या रेक्टल वॉल एज वेल, ब्लेडर वॉल की वजह से पेन ऑन यूरिनेशन होगा, बाउल सिरोजा के इन्वॉल्वमेंट से एब्डोमिनल पेन और एडेशंस बनेगी, फ्लोपियन ट्यूब मिकोजा की इन्वॉल्वमेंट की वजह से स्कारिंग होगी, जिसके नतीजे में ट्यूबल प्रेगनेंसी भी हो सकती है और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। प्लांट्स क्लासिकली प्रेजेंट एज येलो ब्राउन गन पाउडर नोड्यूल्स। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूट्राइन मायोमेट्रियम इज कॉल्ड एडिनोमायोसिस, जो मैं आपको बता भी चुकी हूँ। सो देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्सिनोमा एट द साइट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस एज वेल, स्पेशली इन द ओवरी। तो ये बातें पता होनी चाहिए कि इट इज एसोसिएटेड विद ओवेरियन कैंसर एज वेल व्हेन प्रेजेंट इन द ओवरी। सो दैट्स ऑल अबाउट एंडोमेट्रियोसिस।